नमस्कार, मैं अश्विनी आपके साथ केपी न्यूज बुलेटिन में। शुरू करते हैं सुर्खियों से। पशुपालन मंत्री प्रभु चौहान को बीदर जिला प्रभारी मंत्री पद से हटाया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री भगवंत खुबा भड़के कांग्रेस पर, कहा बिन मौसम गरजते हैं। कोविड-19 स्थिति का विश्लेषण करने के बाद प्रतिबंधों में ढील देने पर विचार होगा, सीएम बोम्मे ने कहा। सीएम बोम्मे ने उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस पर बधाई दी। आईएएस अधिकारियों के डेपुटेशन पर केंद्र और गैर बीजेपी शासित राज्य क्यों है आमने सामने। राहुल गांधी बोले, गरीब और मध्य वर्ग के लोग मोदी सरकार की आर्थिक महामारी के शिकार हुए। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। राज्य पशुपालन मंत्री प्रभु चौहान को बीदर जिला प्रभारी मंत्री के पद की जिम्मेदारी से हटाया गया है। अब चौहान पशुपालन मंत्री के साथ साथ यादगीर जिला प्रभारी मंत्री है। सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि राज्य में कुल 8 ऐसे मंत्री हैं जो स्व जिले के प्रभारी मंत्री थे, उन्हें हटाया गया है, जिसमें प्रभु चौहान भी एक है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि मंत्री के कामकाज की रिपोर्ट भी ठीक नहीं होना भी एक कारण है। लिहाजा मंत्री प्रभु चौहान को बीदर जिला प्रभारी मंत्री के पद से हटाया गया है। केपी न्यूज की रिपोर्ट। केंद्रीय राज्य मंत्री भगवंत खुबा और केपीसीसी कार्याध्यक्ष ईश्वर खंड्रे और हुमनाबाद के विधायक राजशेखर पाटिल के बीच शब्द युद्ध शुरू हुआ। आज खुबा ने शहर के भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि ईश्वर खंड्रे और राजशेखर पाटिल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो आरोप लगाए हैं वह बेबुनियाद है। खुबा ने कांग्रेस पर भड़कते हुए कहा कि कांग्रेस सत्ता में रहती है तो भी हानिकारक है और न रहती है तो भी हानिकारक है। भाजपा सरकार ने लोगों के विकास के लिए अनेक जन योजनाओं को शुरू किया है। इसके अलावा बीदर में रेलवे इलेक्ट्रिक फील्ड किया है, जो कांग्रेस सोच नहीं सकी, वो काम भाजपा ने कर दिया है। हमारे कैमरामैन साबिर खान का कवरेज। ಉದಾಹರಣೆ ಇವತ್ತು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ರೈಲ್ವೆಗಳನ್ನ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನಿನ್ನೆಯಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಏನಂತ ನೀವು ಯೋಜನೆ ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಂಥ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ರಹಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಲಾಭಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಲಾಭಾರ್ಥಿಗಳ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಿದಂತ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿದೆ, ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತರಲಿ, ದಲ್ಲಾಳಿಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು, ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಎಷ್ಟು, ಬಗರಿ ಹಗರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಹಗರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಹಗರಣ, ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಗುರುತು ಹಗರಣ. ಹೀಗಾಗಿ ಮೊನ್ನೆ ಕೆಪಿಸಿಸಿಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು, ಹುಮನಾಬಾದಿನ ಶಾಸಕರಾದಂತಹ ರಾಜಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಪಾಯ, ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಪಾಯ. ಅದರ ಸಂಸ್ಕೃತಿನೇ ಆಗಿದೆ. ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸ್ವಜನ ಪಕ್ಷಪಾತ, ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕಾರದ ಇದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವುದು, ಜಾತಿ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ವಿಷ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಿ ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಒಳ್ಳೆಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಬಡವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವುದು, ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಚಾಳಿ. ಆದರೆ ಮೊನ್ನೆ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು ರಾಜಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ बेमौसम में गरजना ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವಖಳಿ ಮಳೆ ಅಂತೀವಿ, ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬರಂತದ್ದು. ಆ ಸಿಡಿಲು ಗುಡುಗು
ಕಷ್ಟನೂ ಕೊಡ್ತದ, ರೈತರ ಕಷ್ಟನೂ ಕೊಡ್ತದ. ಹಾಂಗ ಇವತ್ತು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಮೋಸಮ್ಮೆ ಗರಜ್ನ ತರ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಅನ್ನ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನವರು ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದಂತ MLC ಚುನಾವಣೆ ಅನುಭವಿಸಿದಂತ ನೋವನ್ನ ಇನ್ನೂ ಮತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುತೇಕ ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆ ನೋವನ್ನ ಮರಿಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರು ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು MLC ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್, ಅದು ನಮ್ಮ ಚುನಾವಣೆ, ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆ MLC ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ರಾಜಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ರು ಮುಂದಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಅಂತ ಮೊನ್ನೆ ರಾಜಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ರೆ ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರೇ ಮಾತೆತ್ತಿದ್ರು. 60 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ರು, ಸಚಿವರಿದ್ರು. ನಾವುಗಳು ಕೂಡ 3 ಸರ್ತಿ 4 ಸರ್ತಿ ಗೆದ್ದಿ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದೀವಿ. MLC ಚುನಾವಣೆ ಮತದಾರರು ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆ ಚುನಾವಣೆ ಹ್ಯಾಂಗ್ ನಡೀತಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡ್ತಾರೆ. बीदर में पिछले 2-4 दिनों से तेज ठंडी हवा चलने का सिलसिला शुरू हुआ है, जिससे मौसम में बदलाव आया है. इसके अलावा धुंध के कारण विजिबिलिटी कमजोर हुई है. मौसम द्वारा बताया जा रहा है कि केंद्रीय भारत से शीतलहर के चलने से आज से 30 जनवरी तक मौसम सर्द होगा. 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी उतरने का अनुमान है. इसका असर पड़ोसी राज्य तेलंगाना के हैदराबाद पर अधिक पड़ा है. इसके कारण हैदराबाद से बीदर सटे रहने का असर पड़ रहा है. केपी न्यूज की रिपोर्ट. अब देखते हैं समाचार राज्य के. कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सोमवार को कहा कि राज्य में महामारी की स्थिति का विश्लेषण करने के बाद कोविड-19 प्रतिबंधों को और कम करने का निर्णय लिया जाएगा. राज्य सरकार ने हाल ही में सप्ताहांत कर्फ्यू हटा लिया है, लेकिन रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक प्रतिबंध लागू है. राज्य ने रविवार को 50,210 नए कोविड-19 मामले दर्ज किए, जो महामारी की शुरुआत के बाद से इसका उच्चतम एक दिवसीय स्पाइक है. इसमें से बेंगलुरु में 26,299 संक्रमण हुए. पिछले 24 घंटे में पॉजिटिविटी रेट 22.77% रही. कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने वन मंत्री उमेश कट्टी और उनके भाई एक पूर्व सांसद रमेश कट्टी के नेतृत्व में बेलगावी क्षेत्र के भाजपा मंत्रियों और विधायकों द्वारा सप्ताहांत कर्फ्यू में हुई बैठक की परिस्थितियों को कम कर दिया. रात्रि भोज की बैठक उन अटकलों के बीच आयोजित की गई थी कि बेलगावी क्षेत्र के कुछ भाजपा नेता जो बोम्मई कैबिनेट में हैं, उन्हें जारकीहोली भाइयों में से एक के लिए रास्ता बनाने के लिए ढील दी जा सकती है, जो 2021 में रमेश जारकीहोली के बाहर होने के बाद कैबिनेट में लौटने की मांग कर रहे हैं. GLB मंदिर. कलबुर्गी के अलंग तालुका के धोतर गांव में एक भव्य मंदिर निर्माण किया गया, जिसका अनावरण 23 जनवरी को शुरू होकर 7 फरवरी तक रहेगा. इस संबंध में चंद्रशेखर हिरमठ ने कहा कि यह हमारी परंपरा है और मेरे पिता की इच्छा थी कि एक मंदिर निर्माण हो. ये हमारा हिरेमठ का परिवार, हम लोग सालों से ये दुर्गा देवी का पूजा हमारा पास करते आ रहे. हमारा 4th जनरेशन है. हमारा पिताजी दादाजी सब दुर्गा का हर दिन पूजा करता था. हम लोग भी हर दिन दुर्गा का पूजा सप्त स्तुति पढ़ के ही हमारा जिंदगी चालू करते हर दिन. हमारा कुटुंब, हमारा परिवार का एक इच्छा था एक नवदुर्गा का मंदिर बनाना बोल के. वो हमारा पिताजी बहुत उसका बारे में सोचे था. उनका देहांत होने के बाद अब हमारा नेटिव प्लेस जो दुत्तरगांव आलन तालुका में है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा दुर्गा का मंदिर बनाया और नवदुर्गा का सेपरेट मूर्ति हम बना के वहाँ पे बिठा रहे. उसका प्राण प्रतिष्ठापन है. और ऐसा शिव को छोड़ के दुर्गा नहीं रहते बोल के शिव का भी एक वहाँ पे एक मंदिर बनाया. शिवलिंग हम वाराणसी से लाया और इसका पूजा पाठ करने वाला आगम शास्त्र का बहुत बड़ा पंडित
जो पूरा साउथ इंडिया में बहुत पॉपुलर है, बहुत रिचुअलिस्टिक है। ऐसा लोग यल्लापुर, गोकर्ण और हमारा उडुपी और केरला, तमिलनाडु से लोग आके ये पूजा पाठ कर रहे। 23 तारीख जनवरी से रुद्राभिषेक चालू होते। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने उत्तर प्रदेश राज्य के स्थापना दिवस पर उत्तर प्रदेश के लोगों और सीएम योगी आदित्यनाथ को बधाई दी। बोम्मई ने एक ट्वीट में कहा, श्री हनुमान की भूमि, श्री राम की भूमि के स्थापना दिवस पर विशेष शुभकामनाएं। राज्य आने वाले दिनों में और भी गौरवशाली समय होगा। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग यानी DOPT ने हाल ही में IAS कैडर नियम 1954 में बदलाव का प्रस्ताव दिया है। अगर यह लागू हो जाता है तो केंद्र प्रतिनियुक्ति पर IAS अधिकारियों की केंद्र की मांग को राज्य सरकारें रद्द नहीं कर पाएंगी। इस प्रस्ताव के पीछे DOPT का तर्क है कि राज्य केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए पर्याप्त संख्या में IAS अधिकारियों को नहीं भेज रहे हैं, जिससे केंद्र सरकार का कामकाज प्रभावित हो रहा है। दूसरी तरफ गैर भाजपा शासित राज्यों का कहना है कि इससे देश के संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचेगा और केंद्र व राज्यों के बीच संबंधों में तनाव बढ़ेगा। DOPT का कहना है कि केंद्र में संयुक्त सचिव स्तर तक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के घटते प्रतिनिधित्व का रुझान देखा गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को आरोप लगाया कि कोरोना वायरस महामारी पूरे देश ने झेली, लेकिन गरीब एवं मध्य वर्ग के लोग नरेंद्र मोदी सरकार की आर्थिक महामारी के भी शिकार हुए हैं। उन्होंने एक खबर हवाला देते हुए ट्वीट किया, कोविड महामारी पूरे देश ने झेली, लेकिन गरीब वर्ग व मध्यम वर्ग मोदी सरकार की आर्थिक महामारी के भी शिकार हुए हैं। अमीर गरीब के बीच बढ़ती ये खाई खोदने का श्रेय केंद्र सरकार को जाता है। राहुल गांधी ने जो खबर साझा की उसमें एक ताजा अध्ययन के हवाले से कहा गया है कि गत 5 वर्षों में सबसे गरीब 20% भारतीय परिवारों की सालाना घरेलू आय करीब 53% कम हो गई। इसी तरह निम्न मध्यम वर्ग के 20% लोगों की घरेलू आय भी 32% घट गई। इस खबर के अनुसार गत 5 वर्षों के दौरान देश के सबसे अमीर 20% लोगों की आय 39% बढ़ गई। पंजाब विधानसभा चुनाव के बीच सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने विपक्षी दल आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस चुनाव आयोग से आपकी शिकायत करने जा रही है, क्योंकि उन्होंने पंजाब की जनता को धोखा दिया है। सिद्धू ने आरोप लगाते हुए कहा कि केजरीवाल हमेशा झूठ बोलते हैं और उनकी शिकायत चुनाव आयोग से की गई है। सिद्धू ने कहा कि आपने मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए फ्रॉड किया है। उन्होंने कहा कि जितनी बड़ी संख्या में SMS के जरिए पोल कराने का दावा किया जा रहा है वो सब फर्जी है। पंजाब में विधानसभा चुनाव के आगाज के साथ ही सभी राजनीतिक दल अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने पंजाब को लेकर NDA का विजन साफ किया है। उन्होंने कहा कि पंजाब बॉर्डर स्टेट होने के नाते सुरक्षा के लिहाज से काफी संवेदनशील है और वहां सुरक्षा का मुद्दा सबसे अहम है।
जेपी नड्डा ने कहा कि यह चुनाव पंजाब का भविष्य तय करने वाला होगा। उन्होंने कहा कि पंजाब में एनडीए की ओर से 37 सीटों पर कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस लड़ेगी और 15 सीटें सुखदेव सिंह ढींडसा की पार्टी शिरोमणि अकाली दल को दी गई है। नड्डा ने बताया कि बीजेपी पंजाब की 65 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अभी भी किसानों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते शामली जनपद के गांव लिलोन में ग्रामीणों ने अपने घरों के बाहर लिख दिया है कि बीजेपी के नेताओं का घर के अंदर आना मना है। घर के अंदर केवल आरएलडी वाले ही आ सकते हैं। वहीं सभी लोग अपने घरों के बाहर बीजेपी वालों के लिए हाथों में लठ लिए खड़े हैं, जिसका वीडियो अभी वायरल हो रहा है, जिसमें ग्रामीण अपने घरों के बाहर खड़े होकर बोल रहे हैं कि अगर बीजेपी पार्टी वाले हमारे घर आते हैं तो उनका स्वागत लठ से किया जाएगा। शामली रिपोर्ट, आजाद खान जनपद। तो राम राम। तो जो ही लिखा बीजेपी वालों का इस मकान के अंदर आना मना है, इसका क्या मतलब है? भाई मेरे मकान के अंदर फूल वाले ना हो, मैं लड़के का हूँ, लड़के को वोट दूंगा, हमें लोग दल के। देखते हैं समाचार फिल्मों के। गहराइयां का पहला सॉन्ग हुआ रिलीज, एक दूसरे में डूबे दिखे दीपिका सिद्धांत। अब देखते हैं खेल जगत के समाचार। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, टीम इंडिया को दोहरा झटका, हार के बाद आईसीसी ने भी सुनाई सजा। अंत में देखते हैं समाचार बाजार के। इंटरनेट के बिना भी कर सकेंगे 200 रुपए से कम के डिजिटल पेमेंट, शुरू हुई टेस्टिंग। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। पशुपालन मंत्री प्रभु चौहान को बीदर जिला प्रभारी मंत्री पद से हटाया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री भगवंत खुबा भड़के कांग्रेस पर, कहा बिन मौसम गरजते हैं। कोविड-19 स्थिति का विश्लेषण करने के बाद प्रतिबंधों में ढील देने पर विचार होगा, सीएम बोम्मे ने कहा। सीएम बोम्मे ने उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस पर बधाई दी। आईएएस अधिकारियों के डेपुटेशन पर केंद्र और गैर बीजेपी शासित राज्य क्यों है आमने सामने। राहुल गांधी बोले, गरीब और मध्य वर्ग के लोग मोदी सरकार की आर्थिक महामारी के शिकार हुए। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। धन्यवाद।